وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، معزز حاضرین، سامعین، ناظرین، آج کے درس کا موضوع ہے شفاعت مصطفیٰ۔ شفاعت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اور عقیدہ شفاعت کیا ہے، قرآن شفاعت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں شفاعت کا عقیدہ، معنی، مفہوم اور مرام کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ کچھ معروضات عرض کروں گا۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، آیت الکرسی میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اسی میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ من یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے، سفارش کرے۔ بعض لوگ یہاں پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھا جی، من یشفع عندہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے، لہذا کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں ہو سکتی۔ اگر آدھی آیت پڑھتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے، اسی آیت میں ہے الا باذنہ، کون ہے شفاعت کرنے والا مگر الا باذنہ، مگر اللہ تعالیٰ کی کہ اذن سے، اسی کی اجازت سے، یعنی جس کو رب اذن دے گا، اجازت دے گا، وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ اگر آدھی آیت پڑھیں پھر تو مفہوم ہی سمجھ نہیں آتا اور نہ ہی حکم واضح ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، پر اے ایمان والو نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب کوئی آدھی آیت پڑھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جانا، نزدیک نہ جانا، تو کسی بے نمازی کو یہ آدھی آیت مل جائے، اس کو روک کر ہم پوچھیں بھائی تو کبھی مسجد میں نظر نہیں آیا، تو کبھی نماز میں ملا نہیں ہے، کبھی آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ کبھی جمعے میں پائے جاتے ہیں اور نہ کبھی کسی نماز میں آپ نظر آتے ہیں، تو وہ پھر آدھی آیت پڑھ کے کہ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ جی کیا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے نزدیک بھی نہ جانا، اے ایمان والو نماز دے نیڑے بھی نہ جائے ہو۔ تو پھر آدھی آیت اگر یہ مفہوم ہو کرنا ہو تو وہ بھی تو استدلال کر سکتا ہے، اسی لیے جی میں نماز کے قریب نہیں آتا، چونکہ فرمایا گیا کہ نماز کے قریب نہ جانا، تو مگر کہیں گے کان پکڑ کے اس کو ذرا جھنجھوڑ کے کہیں گے، اس ظالم آدھی آیت پڑھ کے اپنا غلط مفہوم نکالتا ہے، آگے تو دیکھ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، فرمایا جب نشے کی حالت میں ہو تو تم نے اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا، لہذا نہ تم نشے کے قریب جاؤ تاکہ نشے کی حالت بھی نہ ہو، اور جب بھی نماز کا وقت ہو تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ معنی تو یہی ہے، مفہوم تو یہ بنتا ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر کوئی کہے، جیسے
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा पढ़ता रहे, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, मगर जब तक पढ़ेंगे नहीं इल्लल्लाह मगर अल्लाह, तो फिर अल्लाह की वादानियत का पता चलेगा, फिर अल्लाह की महबूबियत का, अल्लाह ताला की माबूद होने का पता चलेगा, उसके मसजूद होने का पता चलेगा। तो लिहाजा आधी आयत पढ़कर उम्मत को धोखा नहीं देना चाहिए, कम से कम किसी उम्मती के लाने वाले को तो ये काम नहीं करना चाहिए। कुछ हया का भी तकाजा होता है और रसूलुल्लाह से वफा का तकाजा भी होता है। आधी आयत पढ़ के लोगों को गुमराह करें जी, कोई शफात नहीं कर सकता। अच्छा, एक और बात में जरा अकीदा शफात है क्या, पहले इस चीज को समझिए, फिर आगे में अहादीस इस पर बतौर दलील पेश करता हूं। शफात का मतलब होता है तल्बुर रुखसा। क्या माना होता है, बोलिए? तल्बुर रुखसा यानी बोझ हल्का करने का सवाल करना, बोझ हल्का करने का सवाल करना, यानी बोझ, किसी पर बोझ ज्यादा हो, आप अगर जाग कर बैठेंगे तो कोई बातें मैं अर्ज करूंगा, आप तो फिर 2-3-4 घंटे नींद कर लेते हैं। मैं तो रमजान में कभी रात को सोने का मौका ही नहीं मिला, जागते हुए कभी किधर सफर में, कभी किस जगह खिताब में, कभी किस जगह, और फिर सहरी पे बमुश्किल पहुंचते हैं। तो आप हजरात इस अकीदे को जरा जाग कर बैठें और समझेंगे तो तब इंशाअल्लाह अल अजीज अकीदा रोजे रोशन की तरह वाज़ेह हो जाएगा। सुबहान अल्लाह। इस नीयत से भी कहें ताकि नींद उड़ जाए, इस नीयत से भी कहें ताकि आपको सवाब भी मिले इसका। तो शफात का मतलब है तल्बुर रुखसा, रुखसत का सवाल करना, बोझ हल्का करने का सवाल करना, यानी बोझ में तखफीफ करने का सवाल करना, इसको शफात कहते हैं। किसी के ऊपर बोझ ज्यादा है और वो ज़ेरे बार है, झुक गया है, कमर खमीदा हो गई है, कंधे जो है बोझल हो गए हैं और उठा नहीं सकता, तो ऐसी पोजीशन है अगर, तो उससे बोझ हल्का करने का जो सवाल करना है उसको शफाअत कहते हैं, तल्बुर रुखसा। शफाअत का मतलब होता है कि किसी की रुखसत की सिफारिश करना। तो अब मुझे ये बताइए, शफाअत करना ये तो अल्लाह ताला की तो शान ही नहीं, बोलिए, अल्लाह ताला की तो शान ही नहीं, रब ने तो फैसला करना है। रब तो किसी के आगे सिफारिश नहीं करता, रब तो किसी के बोझ हल्का करने का सवाल नहीं करता, और रब की बारगाह में सवाल किया जाता है, रब की बारगाह में अर्ज की जाती है। इसका मतलब यह है कि शफात करना यह मुस्तफा करीम का काम है, शफात को कबूल करना यह खुदा का काम है। अल्लाह तो किसी और से सवाल नहीं कर सकता, अल्लाह तो किसी और से डिमांड नहीं कर सकता, अल्लाह तो किसी और से रुखसत की सिफारिश नहीं कर सकता। अल्लाह की बारगाह में सिफारिश जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह करेंगे, शफात रसूलुल्लाह करेंगे। अल्लाह शफात कबूल फरमाने वाला है। और कुरान पाक में जहां फरमाया ना उनको शफात फायदा नहीं देगी, वो तो बुत परस्तों के बारे में कहा गया, काफरों के बारे में कहा गया कि उनको किसी की सिफारिश फायदा नहीं देगी। हाँ, मोमिनों के बारे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे, हुजूर के इज़्न से दीगर अंबिया शफात करेंगे, आले बैत करेंगे, सहाबा करेंगे, औलिया करेंगे, सालिहीन करेंगे, नुकबा करेंगे, शुरफा करेंगे, सुलहा करेंगे, और बुजुर्गान दीन करेंगे, उलमाए रब्बानीयीन करेंगे, औलियाए कामिलीन करेंगे, हुफ़ाज़े किराम करेंगे, और अपने वक्त के इमाम करेंगे। ये शफात करते करेंगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा, और कबूल फरमाकर अल्लाह उनके साथ करम का मामला फरमाएगा। एक आपके किसी के ज़हन में ये बात हो कि ये जी शाह जी की अपनी तशरीह है, तो मैं अब इस पर अहादीस बतौर दलाइल पेश करता हूं। बुखारी और नसाई शरीफ की रिवायत है, अन आदम इब्न अलीयन क़ाल समिअतु इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा यक़ूलु इन्न नास यसीरून यौमल क़ियामति जुस्सान कुल्लु उम्मतिन ततबउ नबिय्यहा यक़ूलून या फलान नुशफा या फलान नुशफा हत्ता तंतही यश्शफातु
इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ालिका यौम यबअसुहुल्लाहुल मकामल महमूद। रवाहुल बुखारी। हजरत आदम बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि वो फरमाते हैं कि क़यामत के रोज लोग गुरो दर गुरो हो जाएंगे, गुरो दर गुरो हो जाएंगे। और फिर क्या करेंगे? चूंकि हिसाब किताब जब शुरू नहीं होगा तो हर उम्मत अपने नबी के पीछे होगी, हर उम्मत अपने नबी के पीछे होगी और अर्ज करेगी कि हमारी शफाअत फरमाइए, हमारी शफाअत फरमाइए। और सारे अंबियाए किराम अर्ज करेंगे कि आज तो खुद भी अल्लाह ताला की बारगाह का हम तसव्वुर करके, उसके जलाल का तसव्वुर करके हम खुद लर्जा बरअंदाम हैं, हम कैसे शफाअत करेंगे? फरमाया होते होते ये बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कचहरी तक पहुंचेगी। हजूर तक जब पहुंचेगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर इस शफाअत के लिए तैयार हो जाएंगे। फरमाया हुजूर जो शफाअत फरमाएंगे तो ये इस शफाअत फरमाने में हुजूर की शफाअत को अल्लाह कबूल फरमाएगा, गुनाहगारों की बख्शिश फरमाएगा। फरमाया उस दिन इज्जत वाला मकाम, हम्द वाला मकाम यानी मकाम महबूद अल्लाह ताला ने मुस्तफा करीम के लिए खास किया हुआ होगा। अच्छा, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न शम्सा तदनु यौमल क़ियामत हत्ता यबलुगल आराको निस्फल उज़ुन। फरमाया क़यामत वाले दिन सूरज बिल्कुल लोगों के करीब आ जाएगा और जमीन आपको पता है तांबे की होगी, सूरज बिल्कुल सरों के करीब होगा, जमीन तांबे की होगी। और आज भी जून जुलाई का सूरज तपता है और कहां है वो सूरज, तो यहां बंदा तड़प जाता है, सहम जाता है। आप पानी पे हाथ लगाएं तो पानी खोलना शुरू हो जाता है, बिलखुसूस जिनकी ये चादरों वाली, ये टीनों वाली छत होती है उसके नीचे बंदा बैठ नहीं सकता। ऐसे ही है या नहीं? जिनकी ये तरह की टैंकियां छोटी मोटी रखी हुई हैं, वो पानी खोले तो हाथ जल जाता है। वो इतने दूर से सूरज है तो उसकी हिद्दत और गर्मी की शिद्दत इतनी है। जब जमीन तांबे की होगी, सवा नेज़े पर सूरज होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त कोई हत्ता यबलुगल आराको निस्फल उज़ुन, यहां तक कि किसी के पसीना टखने तक होगा, किसी का पिंडली तक होगा, किसी का जानू तक होगा, किसी का धुनी तक होगा, किसी का कंध तक होगा और किसी का कान की लो तक पसीना पहुंच जाएगा। आप देखें नीचे तांबे की जमीन और सूरज आग बरसा रहा है और यहां तक रिवायत में आता है कोई पसीना जब उबल रहा होगा, जैसे हंडिया का जो है हंडिया जोश मारती है तो कईयों के बदन पिघल रहे होंगे उससे। ठीक है, हड्डियों का भेजा जो है वो गोदा उबल रहा होगा तो उस वक्त कौम परेशान होकर कहेगी, ए आप हर नबी की कौम उसके पास जाएगी, कोई मेहरबानी कीजिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिए कि रब हिसाब किताब शुरू फरमा दे। हिसाब किताब शुरू नहीं होगा, सारी कौम जमा होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएगी। वो कहेंगे आज मैं तो खुद कुछ नहीं कर सकता, इस अबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। हजरत शीश के पास जाएंगे, वो कहेंगे इस अबू इला गैरी, दूसरे नबी के पास जाओ। करते 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 हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, याकूब, इसहाक, यूनुस, यहया, जकरिया, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे जो है अंबियाए किराम के दरवाजों से कौम होती हुई, आपको पता है जिसको उम्मीद वो जान पर बनी हुई हो और एक दरवाजे पे जाएं वहां से भी इनकार हो जाए, दूसरे पे जाएं वहां से भी इनकार हो जाए, तीसरे पे भी हाजत पूरी ना हो, चौथे पर भी जरूरत पूरी ना हो, पांचवा भी आप जो है आपकी डिमांड पूरी ना कर सके, इतने दरवाजों पर फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के गुलामों, अब मकाम देखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आओ मैं तो तुम्हारी मुश्किल दूर तो नहीं कर सकता, जहां मुश्किल दूर होगी मैं उनका दरवाजा जरूर बता सकता हूं, उनके चौखट का रास्ता जरूर बता सकता हूं। ये बुखारी शरीफ है, ये मुस्लिम शरीफ है, ये अहादीस हैं
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पता बता के ईसा अलैहि सलाम फरमाएंगे इधर उधर ना जाओ, फरमाया इज़हबू इला मोहम्मद, जाइए मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास, इसलिए कि आज के दिन बाकी सारे खुद लर्जा बरअंदाम हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद पर तशरीफ फरमाए हैं, और सबसे बढ़कर महबूब तो अल्लाह ताला के वही है। फरमाया महबूब के पास जाओ। अब कौम उफ्तों खेजा, तरसों लर्जा, परेशान हाल, परा गंदा हाल और तरसे हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट की तरफ बढ़ेंगे। आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जुलूस किसी को नागवार गुजरे, हुजूर के इश्क का जुलूस किसी को नागवार गुजरे, पूरी खल्के इंसानियत को जमा करके जुलूस बनाकर रब सबको रसूलुल्लाह की चौखट पर भेजेगा, हुजूर के कदमों में भेजेगा, सरकार की चौखट पर भेजेगा। और हुजूर जब देखेंगे इस उम्मत को और पहली उम्मतों को भी परेशान आते हुए, तो सरकार बाहें खोल कर फरमाएंगे न हम अना लहा, न हम अना लहा। हाँ आओ, आज इस मुश्किल घड़ी के लिए मैं ही हूं, आज इस परेशानी के लिए मैं ही हूं, आज इस तुम्हारी मुसीबत को दूर करने के लिए मैं ही हूं। कहेंगे सारे नबी इज़हबू इला गैरी, कहें तुम या रसूल अल्लाह, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ता हुआ काम बन गया होगा। और कहेंगे सारे नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे करीम के लब पर अना लहा होगा। सारे कहेंगे तो उधर जाओ, उधर जाओ। सरकार फरमाए आओ आओ, मेरी बाहें खुली हैं तुम्हारे लिए, मेरी कमली तकई छाओ तुम्हारी मुंतज़िर है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सारे खुश होंगे। और वो आयत तो ये शेर, मगर ये मंजर कशी है मेशर की कि गुनाहगारों से पुरशिश, मेशर में पुरशिश जिस घड़ी होगी तो हर एक बशर को अपनी ही पड़ी होगी, सभी को आस उस दम कमली वाले से लगी होगी कि इतने में मोहम्मद की सवारी आ रही होगी। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें जरा, थोड़ी देर के लिए इतने में मोहम्मद की सवारी आ रही होगी और आवाज आएगी कि न घबराओ गुनाहगारो, न घबराओ गुनाहगारो, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद जिनके कांधे पे कमली है काली। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और क्या समा होगा, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहिल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसरा होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर ही उम्मीद होगी, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही एक उम्मीद और ढारस होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खुदाए का हार है गजब पर, खुदाए का हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुदाए का हार है गजब पर, आज अल्लाह जलाल में है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, आज रब की पकड़ बड़ी सख्त है, हिसाब किताब होगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिसने नेकी का एक जर्रा भी किया है वो भी देखेगा, जिसने छुप कर तन्हाइयों में खलवत कदों में जिसने गुनाह किए हैं एक जर्रे के बराबर वो भी आश्कारा होंगे, वो भी सबके सामने होंगे और सार किताब हाथ में दी जाएगी, सब कुछ पढ़ा जाएगा। फरमाया उस वक्त क्या होगा, फरमाया खुदाए का हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, दफ्तर रजिस्टर को कहते हैं, एक नहीं कई रजिस्टर बदकारियों के खुले हुए हैं। खुदाए का हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफी माशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। और करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदा करेंगे और ये सजदा शफाअत है,
बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, हुजूर सजदा करेंगे, फरमाया मैं अपने रब की वो सना करूंगा जो इससे पहले किसी ने नहीं की है, वो तारीफ करूंगा जो पहले आज तक किसी ने नहीं की। फिर रब फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, इरफा रासका या मोहम्मद, कुल तुस्मा सल तोता वशफा तुशफा। ए मेरे महबूब अपने चेहरे को सजदे से उठाइए, ए महबूब अपने चेहरे को सजदे से उठाइए, और आपके रुखे रोशन की दुनिया मुश्ताक है, आपके चेहरे अनवर के दीदार की कायनात मुश्ताक है। ए मेरे महबूब उठाइए अपने चेहरे को। और यहाँ इमाम आले सुन्नत ने हद कर दी। देखें आले इश्क कहते हैं चूंकि इज़्ज़त शम्स कुव्विरत, जब सूरज का बिस्तर लपेट दिया जाएगा, सूरज का बिस्तर लपेट दिया जाएगा तो क्या अंधेरे में हिसाब होगा? कहते हैं वो फिर कैसी कैफियत होगी? फरमाया जब सूरज भी नहीं है और दिन को होना है, चांद भी नहीं है। आले इश्क कहते हैं, फरमाया उस वक्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ही कायनात को रोशन करने के लिए काफी होगा। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत इश्क वालों की बात फिर अपनी होती है। कहते हैं कि खुर्शीद था किस ओज पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। खुर्शीद था किस ओज पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। और डर था कि हिस्सियां की सजा अब होगी या रोजे जजा। डर था गुनाहों की सजा, डर था कि हिस्सियां की सजा अब होगी या रोजे जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगारों को अपनी कमली में छुपाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम को रब फरमाएगा महबूब इरफा रासका, अपने सर को सजदे से उठाइए। कुल तुस्मा, आपका मामला और है, दूसरों का मामला और है, आप महबूब हैं। फरमाया महबूबों को नाराज नहीं किया जाता। फरमाया कुल तुस्मा, आज आप जो कहेंगे वो बात सुनी जाएगी। सल तुस्मा, सल तोता, जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। वशफा तुशफा, फरमाया आप शफात कीजिए, आपकी शफात को कबूल किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे, सिफारिश करेंगे। हदीस पाक में आता है, सियाही सित्ता की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इजाजत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ लाए। फरमाया अतदरूना मा खय्यरनी रब्बी अल्लैला, फरमाया तुम्हें पता है आज मुझे रब ने क्या इख्तियार दिया है? या रसूलल्लाह आप बता दें। फरमाया फइन्नहु खय्यरनी बैना अन यदखुला निस्फ उम्मती अल जन्ना व बैना शफाआ, फरमाया अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है महबूब, आपकी जितनी उम्मत है ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, आधे करें, और आप मर्जी है तो आदि को बगैर हिसाब किताब के अपने साथ जन्नत में लेके चले जाए, और अगर मर्जी है तो शफात को इख्तियार कर लें। सरकार ने फरमाया फअख्तर तो शफा, फरमाया मैंने शफात को इख्तियार कर लिया है। इसका मतलब यह है शफात जो है वो आधी उम्मत से ज्यादा जो फायदे वाली चीज है ना। अगर आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब के जाना अल्लाह ने इजाजत दे दी थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तियार दिया, फरमाया मैंने शफात को इख्तियार कर लिया। और कुलना या रसूल अल्लाह उदुल्लाह अन यजअलना मिन आलिहा, सहाबा फरमाते या रसूल अल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें ना, फिर अल्लाह ताला हमें भी उनमें से कर दे, यानी जिनकी आप शफात फरमाएंगे। काला या लिकुल्ल मुस्लिमिन, फरमाया सहाबा ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है, क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए अल्लाह ने मेरी शफात को जारी फरमा दिया। और एक रिवायत में हुजूर ने फरमाया शफाअती यौमल क़यामत हक़्क़ुन मल लम युमिन बिहा लम यकुन मिन आलिहा, फरमाया मेरी शफात क़यामत वाले दिन हक है, सच है। फरमाया जो इस पर ईमान नहीं रखेगा वो इससे महरूम रहेगा, और जो मेरी शफात पर ईमान रखेगा मैं उसकी सिफारिश करके शफात करके अपने साथ उसको जन्नत में लेके चला जाऊंगा। हज़रत चिरागे गोल्डा इसीलिए कहते हैं जन्नती वो हैं, बल्कि कहते हैं नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे,
मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। खुल्द में भीड़ नजर आती है दीवानों की, मेरे सरकार के सब चाहने वाले होंगे। और जन्नती वो हैं जिन्हें उनकी शफाअत पे यकीन, वो जो मुनकिर हैं जहन्नम के हवाले होंगे। और पूछा दोज़ख ने कि या रब हैं गुनाहगार कहां? पूछा दोज़ख ने कि या रब हैं गुनाहगार कहां? ज़ात हक बोली के मोहम्मद ने संभाले होंगे, ज़ात हक बोली के मोहम्मद ने संभाले होंगे। और उनकी हर एक सिफत जबकि है एजाज नसीर, नात गोई के भी अंदाज निराले होंगे। ये नसीर मिल्लत ने कहा। और इन अहादीस की रोशनी में ताजदार गोलड़ा किबला आलम गौसे ज़मा इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन सैयदना पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गिलानी गोलड़वी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खत्म नबुव्वत के पहरेदारी के लिए चुना है, जिनका इंतखाब किया है। और मैं बबांगे दोल कहता हूं, कायनात में खत्म नबुव्वत जैसा मुकदमा कोई नहीं, और फिर मेहर अली जैसा वकील भी तो कोई भी नहीं है ना। ताजदार गोलड़ा का इंतखाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हुआ। फरमाया मेहर अली मेरे खत्म नबुव्वत पर पेरा तेरी जिम्मेदारी है। और किबला आलम वो हुजूर की बारगाह के मकबूल, और उन्होंने चूंकि लिखा फरमाया ज्योति का रब्बो का दास तुसा, हज़रत चिरागे गोलड़ा ने इस पर तज़मीन लिखी है। फरमाते अज पा लिया केहा लिबास तुसा, अगर ज़ौक़ हो तो सुनाऊं मैं। अज पा लिया केहा लिबास तुसा, साडे लुट ले होश हवास तुसा, असा गंदियां मंदियां दा पास तुसा, योती का रब्बो का दास तुसा, जामा रहमत वाला रास तुसा, कीता दिल ना किसे दा उदास तुसा, सारी उम्मत दा एहसास तुसा, योती का रब्बो का दास तुसा, फतरदा थी पूरी आस असा, लजपाल करे सी पास असा, वशफा तो शफा सही पढ़िया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, वाला सौफ योती का रब्बो का फतरदा, महबूब अल्लाह आपको अनकरीब इतना अता करेगा कि आप राजी होंगे, यानी अल्लाह हर हाल में आपको राजी करके छोड़ेगा। अल्लाह आपको हर हाल में राजी करेगा। सारी कायनात खुदा की रजा चाहती है और खुदा मुस्तफा की रजा चाहते हैं। कुल्लुहुम यतलुबून रिदाई व अना अतलुबु रिदा का या मोहम्मद। फरमाया महबूब कायनात में हर एक मुझे राजी कर रहा है और मैं रब होकर तुझे राजी कर रहा हूं। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हम तफसीर जलालैन में है, जब ये आयत नाज़िल हुई ना, हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा आप रवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमने अर्ज की, मता दर्दा या रसूल अल्लाह, या रसूल आप कब राजी होंगे? ये रवायत सुन करना मुझे और आपको फिर ऐसी उम्मीद लगी है हुजूर की रहमत से, फिर कायनात हमें वहां से दूर करने की कोशिश करे। हम मर तो सकते हैं, रसूलुल्लाह की चौखट से दूर नहीं हो सकते। फरमाया यार सब मता तरदा, आप कब राजी होंगे? सरकार ने फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह, हुजूर ने फरमाया मैं आपको वाला दे चुका हूं इमाम जलालुद्दीन सुयूती का। और पता है इमाम जलालुद्दीन सुयूती कौन सा शख्स है? जिसको जागते हुए 75 से ज्यादा मर्तबा रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत नसीब हुई है। वो फरमाते हैं सरकार ने फरमाया, हजरत अली ने जब पूछा तो सरकार ने फरमाया अली सुन, ला अर्दा कत्तो व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। फरमाया उस वक्त तक मैं कभी भी राजी नहीं होऊंगा, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक भी सच्चा उम्मती और गुलाम जहन्नम में जल रहा होगा। फिर राजी कब होंगे? फरमाया जब सबको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में साथ ले जाऊंगा। रब फरमाएगा महबूब अब राजी हो? मैं कहूंगा या अल्लाह अब मैं राजी हो गया। हाय हाय हाय, क्या मोहब्बत का अंदाज है। कौन किसी के लिए रोता है? वो सैयदुल मासूमीन हो, कौन किसी के लिए रोता है? तेरे मेरे लिए ये नबी गारों में रोते रहे, तेरे मेरे लिए ये नबी अर्श पे जाकर रोते रहे, तेरे मेरे लिए ये नबी सजदों में रोते रहे, तेरे मेरे लिए ये नबी रात की तन्हाइयों में रोते रहे, तेरे मेरे लिए ये लजपाल नबी मुसल्ले पर रोते रहे, तेरे मेरे लिए ये लजपाल नबी रात को जाकर जन्नतुल बकी में रोते रहे, सजदों में रोते रहे, और इतना अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते कि पांव मुबारक सूज जाते, पांव मुबारक
मुबारक पर वरम आ जाता और रब्बे जुल जलाल रहमत की लोरी देकर फरमाता, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ए मेरे महबूब, तू खड़ा हो कि तेरे पांव सूज गए हैं, वरम आ गया है, मेरे महबूब इसको थोड़ा थोड़ा रात को खड़ा हुआ कर, निस्फ हुआ इनको कलीला, आधी रात कर ले, ये इससे भी कम कर ले। और हजरत आयशा फरमाती हैं, या रसूलल्लाह आप क्यों रो रहे हैं, क्यों रोते हैं, आपके सदके से तो बख्शिश होनी है। फरमाया, आयशा मुझे अपना ख्याल नहीं, मुझे अपने गुनाहगार उम्मतियों का ख्याल। मेरे और आपके लिए रसूलुल्लाह रोते रहे। और फिर सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शफाअती लिआलिल कबाइर मिन उम्मती, फरमाया मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए है। ये हदीस पाक पढ़ी जब, भाई बड़े गुनाहगारों के लिए तो छोटे गुनाहगार कहां जाएंगे। मैंने हुजूर मुस्लिम उम्मत उस्ताजुल असातिज़ा रौनक बज़्म इल्म इरफां किबला आलम शेखुल हदीस सैयदी सन्निधि हुजूर किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद ग्रामी है, मुर्शिद कामिल हैं, आपसे जब ये सवाल किया तो आपने फरमाया, बेटा इसमें हुजूर इशारा फरमा रहे हैं कि बड़े गुनाहगारों के लिए मेरी शफात है। फरमाया जो छोटे गुनाहगार हैं, कोई तो हाफिज़ कुरान की शफात से बख्शे जाएंगे, कोई तो औलिया की शफात से बख्शे जाएंगे, कोई तो सालिहीन की शफात से बख्शे जाएंगे, कोई तो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उलमाए रब्बानियीन आइमा ताहिरीन इन बुजुर्गों की शफात से बख्शे जाएंगे। फरमाया जो इतने बड़े गुनाहगार हैं जहां कोई शफात नहीं कर सकेगा, फरमाया शफाअती लिआलिल कबाइर मिन उम्मती, जहां किसी की शफात कायम नहीं आएगी वहां मुस्तफा की शफात काम आएगी। फरमाया उन बड़े गुनाहगारों को मैं शफात करके अपने साथ जन्नत में लेके चला जाऊं। एक हिंदू शायर दिल्लू राम कोसरी कहता है, आप देखो ना एक हिंदू है वो क्या कह रहा है, कहता है तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, हिंदू होकर कहता है। फिर अल्लाह ने उसको दौलत ईमान भी अता कर दी, कहते तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, खुदा का कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह। खुदा हाफिज सही नासिर सही, लेकिन ये मेशर है, यहां खुदा हाफिज है, नासिर है, मददगार वही है, बख्शने वाला वही है, मगर आज तो हिसाब ले रहा है, आज तो हिसाब ले रहा है। तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, खुदा का कर लिया हमने नजारा या रसूल अल्लाह। खुदा हाफिज सही नासिर सही, लेकिन ये मेशर है, यहां तो आप ही दोगे सहारा या रसूल अल्लाह। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर जो आएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत फरमाएंगे। और मैं इसका आज का दर्स इस बात पर इख्तिताम करूं, जुम्मा भी है, फिर कुछ बातें जुम्मे पर भी होंगी इंशाअल्लाह, बाकी भी दर्स मामलात रहते हैं। मैं आपको अगर शायद आज रात लैलतुल कद्र गुजरी हो, क्योंकि हो सकती है शायद आज रात की हो, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, जितना कुछ दीन थोड़ा बहुत हमने पढ़ा सीखा सुना समझा पढ़ा पढ़ाया, उसका रिजल्ट निकाल के मैं आपको कहता हूं, कल क़यामत वाले दिन कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको ये नाज हो, ये फख्र हो, ये यकीन हो, ये गारंटी हो कि मैं आमाल के सदके बख्शा जाऊंगा। कितने आमाल हैं, पूरी जिंदगी आप सजदे में गुजारें, रब की एक नेमत का भी बदला आप नहीं पूरा कर सकते। एक नेमत का जो एक सांस लेते हैं, आप आंखें देखें, आप बिजली न जलाएं तो अभी महीना नहीं होता तो बिल पे आ जाता है। इस आंख को दिन रात इस्तेमाल करते हैं और वहां भी इस्तेमाल करते हैं जहां रब ने मना किया है, जहां हुजूर ने मना किया है, मगर अल्लाह ने कभी इसका कनेक्शन नहीं काटा। इस बिजली का अल्लाह जो ये नूर इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ने बिल नहीं भेजा। ये समात, ये जुबान, ये हाथ, ये दिमाग, ये पांव, ये सारी नेमतें, ये हवा, ये पानी, ये सारी जिंदगानी, कोई भी आप अल्लाह की किसी एक नेमत का भी हक अदा नहीं कर सकते तो कहेंगे अमाल बड़े। नहीं, कल जो बख्शिश का फैसला होना है वो अमाल के बलबोते पर नहीं होना, आमिना के लाल के बलबोते पर होना है। जो बख्शे जाएंगे वो अमाल की वजह से नहीं,
آمنہ کے لال کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم میں اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دے، اور جب وہ پناہ مل جائے گی تو ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ حضور کے دامن کرم سے کامل وابستگی نصیب فرمائے، غلامی نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے اللہ تعالی ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔